Hello, my dear students. Today, before we start or discuss the topic, I want to ask you which party is your favorite and why? Long list will come, and ours we Indian will take for the discussion of political parties. कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हमारी फैमिली की फेवरेट है, क्यों है, किस लिए, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी आर लॉयल टू दिस और दैट पार्टी. Long hours, days after days, we can discuss about political parties, policies, program, whether we don't know about the political structure, about the government formation, about the basic work, but still we can discuss, okay, in detail, with enthusiasm and interest regarding the political parties. Okay, so that's why we are discussing about political parties. Today's our topic, you can understand. Okay, very well understand that we are discussing about the political party. हम लोग घंटों लगा देते हैं Indians to discuss about the political parties. Okay, and very much keen interest in this topic, burning issue. Okay, we can see. But why do we need political parties? क्या खाली discussion के लिए? Okay, so that we should discuss enthusiastically, participate in the discussion regarding the political party. That doesn't mean that is the basic need of the political parties. Why do we need political parties? What is a political party? होती क्या है पहले? Okay, ये भी नहीं हम Indians को, most of Indian may not be familiar with this fact. What is the basic meaning of political party? But still, okay, our basic nature, as cricket is our religion, Indians ka religion, and we can spend hours for the cricket. Similarly, political parties. Okay, so today we are going to discuss about the political parties, meaning, function, necessity, and party system. So many things. So without wasting time, I want to welcome you in YouTube channel Learning with Aradhna ma'am. And with Aradhna ma'am, we are discussing political parties. Okay. The very first thing, political party meaning, इसका meaning क्या है जी? Political party में first of all जो है इसके followers, active members होने जरूरी है. Okay, political parties who formulate policy and members come together, persons come together, people come together, लोग इकट्ठे आते हैं क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी, उनकी थिंकिंग सेम है, इसलिए वो एक पार्टी में आते हैं, एक पार्टी बनाते हैं. ठीक है, द पीपल ऑफ सेम थिंकिंग, सेम आइडियोलॉजी formulate a party and they join together and contest election लड़ते हैं. ओके, चुनाव लड़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पार्टिसिपेट. बट व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दिस? दे वांट टू गेन पावर हासिल करें. ओके, वांट टू गेन और गेट पावर, सो दैट दे शुड गेट पावर. एंड क्या है, गवर्नमेंट फॉर्म करें एंड पावर अपने हाथों में रखे, गवर्नमेंट बनाए, मिनिस्टर बने और लीडर बने. दिस इज द बेसिक आइडियोलॉजी, सबकी सेम होती है. दिस और दैट एजेंडा पॉलिटिकल पार्टीज का आपको पता होगा, बनाते हैं कि हम इलेक्शन में जीतने के बाद ये करेंगे, वो करेंगे. दैट इज द पार्टी एजेंडा. ओके, जिनकी आइडियोलॉजी सेम होती है, ये सारे के सारे पर्सन्स जो हैं, पीपल जो है, दे कम टुगेदर एंड form the party and actively participate to contest election to get power and to formulate the government. I hope you understood the basic meaning of political party. Now we are moving towards the next one, components of a political party. के component क्या जरूरी पार्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल, political party का लीडर एक अच्छा होना चाहिए. अच्छी से अच्छी पॉलिटिकल पार्टी भी बैठ जाती है कई बार. ओके, पॉपुलैरिटी उसकी लो चली जाती है, ऑल्दो दैट पार्टी हैज सो मेनी फॉलोअर्स, बट लीडर क्या है, अट्रैक्टिव नहीं, एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट नहीं, या कह लो इंटेलिजेंट नहीं है. ओके, सो पावरफुल लीडरशिप होनी बहुत जरूरी है. दिस इज द बेसिक नेसेसिटी. और पार्टी जो बिल्कुल
इलेक्शन नहीं जीत रही थी, एक पावरफुल लीडर आने से क्या हुआ? You know very well. I'm not here to quote the example. You people are quite familiar. एक powerful leadership होनी, this is the basic necessity of political party. Basic component you can say. और मेंबर्स, पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर भी बहुत होने चाहिए, तभी पॉलिटिकल पार्टी चल पाएगी। सेकेंड कंपोनेंट ये है। थर्ड, उसके फॉलोअर, फॉलो करने वाले, उसकी आइडियोलॉजी और पॉलिसीज को। हमारे इंडिया में कितने फॉलोअर्स हैं? अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो कर रहे हैं, और कई बार लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, अपनी अपनी पार्टी के लिए गर्मा गर्म बहस हो रही है, और फिर बात लड़ाई झगड़ी, इतने फॉलोअर्स जिसको हम लोग कह लें कट्टर। सो पॉलिटिकल पार्टी का ये भी कंपोनेंट है कि फॉलोअर होने बहुत जरूरी है पॉलिटिकल पार्टीज के। नाउ वी हैव डिस्कस द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, लीडरशिप, members and followers. Now we are moving towards the next one, that is the function of political party. अब political party तो बन गई, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप भी आ गए, उसके मेंबर्स भी हैं, फॉलोअर्स भी कंट्री में भरे पड़े। अब ये पॉलिटिकल पार्टी काम क्या करेगी? Now what sort of function this political party is going to perform, this we are going to discuss. Okay, first of all basic जिसके लिए ये बनी है political party, किसके लिए? I have discussed in the meaning of the political party. The people come together, people of same ideology and policy come together and formulate the policies to contest election. आ गया ना election, उसका काम क्या है? पहला election लड़ना, okay, चुनाव लड़ना, ज्यादा से ज्यादा चुनाव जीतना और अपनी पार्टी को पावर में लेके आना, पहला काम ही यही इनका होता है। ओके, चुनाव लड़ना और अपने आप को चुनावों के लिए रेडी रखना और लोगों को अपनी ग्रिप में रखना और अपने आप को पूरा बेस्ट वे से प्रेजेंट करना, कॉन्टेक्ट। ये है सेकंड है पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स। पॉलिटिकल पार्टीज जो भी बनती है अपनी पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स बनाती है, इतने बढ़िया बढ़िया पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स बनाए ताकि लोग अट्रैक्ट हो, उनको ही वोट डाले और उन्हीं की पार्टी जो है वो जीते। ये पॉलिटिकल पार्टी का बेसिक नेसेसिटी वी कैन से। पॉलिटिकल पार्टी बन गई है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं है, पॉलिसी प्रोग्राम्स क्लियर नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी वैनिश स्लोली एंड स्टडीली, खत्म हो जाएगी। सो पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स फॉर्मुलेट करना पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा स्ट्रॉन्ग फंक्शन है। ओके, ये उनका बहुत बड़ा फंक्शन है। सो नेक्स्ट वन इज प्ले डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज। बहुत बढ़िया इनका रोल है, निर्णायक। डिसाइसिव मीन्स निर्णायक। ओके, रोल है इनका लॉज बनाने में। आपको पता है पार्लियामेंट में बैठे हैं, ये जो भी इलेक्शन जीते हैं लॉ बनाएंगे। अभी फार्मर लॉ बने ही है, आपको पता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बनाए हैं बैठ के, अपोजिशन पार्टी ऑफ द अपोज, ये इन्होंने लॉ बनाने होते हैं। ये अपने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें अमेंडमेंट्स करके न्यू लॉ बनाने या न्यू लॉ इंट्रोड्यूस करने, ये इनका सबसे बड़ा रोल होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। जो जीत गए हैं वो लॉ बनाते हैं, जो हार गए हैं ऑपोजिशन पार्टी यानी कि वो उसमें क्या है, डिस्कशन के लिए, अपोज के लिए, ये पास ना हो बिल, बिल मीन्स लॉ, जब तक लॉ पास ना हो जाए उसको बिल कहते हैं। ओके, आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो। सो ये पॉलिटिकल पार्टीज का डिसाइसिव रोल होता है लॉ बनाने का। अलग अलग पॉलिसी तो कंट्री के लिए बनानी है, लॉ भी। देन नेक्स्ट है पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है वो गवर्नमेंट बनाती है। ओके बच्चे, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीत गई वो बनाएगी अपनी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चलाएगी, पूरे कंट्री को 5 साल के लिए चलाएगी। और जो पार्टी हार गई है वो ऑपोजिशन का रोल, ओके, ऑपोजिशन पार्टी बनेगी। वी हैव नाउ मिस्टर नरेंद्र मोदी एज अवर प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी है बीजेपी। बीजेपी इलेक्शन में जीती तो उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, अब पूरे कंट्री को चला रहे हैं 5 साल के लिए। सो पॉलिटिकल पार्टी का फर्स्ट क्या है, इलेक्शंस लड़ना, पॉलिसी प्रोग्राम्स बनाना, लॉ बनाना, और जीत गए हैं तो अपनी गवर्नमेंट बना के 5 साल के लिए रूल करना। देन है प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन पार्टी। जो पार्टी जीत नहीं सकी इलेक्शन, ओके, आपको पता ही है, वो ऑपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करती है और वो देखती रहती है कि जो रूलिंग पार्टी है, जो पावर में पार्टी है, जिस पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई इलेक्शन जीतने के बाद, वो सारे काम सही से करिए। जहां कुछ कमी मिली नहीं, अपोजिशन पार्टी
तैयार है। इसलिए गवर्नमेंट जो है मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मोर केयरफुली, वी कैन से केयरफुली वर्क करती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि ऑपोजिशन बैठी है हमारी टांग खींचने के लिए, नेक्स्ट इलेक्शन हम हार ना जाए, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा बढ़िया काम करना चाहती है ऑपोजिशन पार्टी के डर से। ओके, पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन पार्टी का भी रोल प्ले करती है। जो पार्टी इलेक्शन हार जाती है, दैट इज द ऑपोजिशन पार्टी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सिक्स्थ, शेप द पब्लिक ओपिनियन। पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक ओपिनियन, विचार को शेप करती है। अब जैसे फार्मर लॉ है, ऑपोजिशन पार्टी पब्लिक ओपिनियन फॉर्मुलेट कर रही है कि दिस इज अगेंस्ट द फार्मर। सो ये पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत बड़ा काम है कि पब्लिक ओपिनियन को ऐसे शेप करो, ऐसे मोल्ड करो कि हमारी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाए, वी आर बेस्ट फॉर द पीपल, और इलेक्शन जीत जाए। ये पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत बड़ा काम होता है। रूलिंग पार्टी कहेगी वी आर द ओके, हम लोग बेस्ट अपने कंट्री की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ऑपोजिशन अगेंस्ट। सो हर पार्टी ये चाहती है कि पब्लिक ओपिनियन अपने फेवर में हम लोग रखें, ओके, और करें। सो नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड पीपल access टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड द वेलफेयर स्कीम। पॉलिटिकल पार्टीज जो बन गई है गवर्नमेंट वो भी, और जो ऑपोजिशन है वो भी, हर कोई ये चाहता है कि गवर्नमेंट जो है कॉमन पीपल की वेलफेयर के लिए अलग अलग स्कीम्स लेके आए। कैंडिडेट जो जीत गए हैं वो कॉमन पीपल के कांटेक्ट में रहे, उनका काम करते रहे, ताकि इलेक्शंस नेक्स्ट टाइम वो जीते हैं। और जो हार गए हैं वो चुप करके नहीं बैठते, वो भी कॉमन पीपल के लिए काम करते रहते हैं, ताकि नेक्स्ट इलेक्शन आते आते उनका विश्वास जीते और जीते। और गवर्नमेंट जो वेलफेयर स्कीम बना रही है, रूलिंग पार्टी के मेंबर ये करते हैं कि हर वेलफेयर स्कीम जो गवर्नमेंट ने बनाई है वो पेपर्स तक ही ना रह जाए, या लिमिटेड पीपल तक ही उसके फायदे ना पहुंचे, सब तक बेनिफिट पहुंचे वेलफेयर स्कीम के, ये रूलिंग पार्टी के मेंबर्स इंश्योर करते हैं। ओके, सो वी हैव डिस्कस द बेसिक फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल पार्टीज, नॉट पॉलिटिकल साइंस। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेसेसिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब हमने काम कर लिया कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्या जरूरत है पॉलिटिकल पार्टी की? एक कैंडिडेट वैसे ही इलेक्शन जीत के ये काम नहीं कर सकता। हमें पता है कितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, कितनी रीजनल पार्टीज है, तो क्या जरूरत है इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज की? कई बार जो पावर में आने के बाद पूछती भी नहीं है। सो बेटर है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही रहे। नहीं, वो हमारी अप्रोच में भी है, काम भी करेंगे। नॉट एट ऑल बेटा। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है या सिंगल कैंडिडेट है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का तो ध्यान रखेगा कि जहां से वो इलेक्शन जीता है वो उसी की वेलफेयर स्कीम बनाएगा, उसी के बारे में सोचेगा, कंट्री के बारे में, क्योंकि उसका तो वही स्फेयर, वही दायरा है, वही लिमिट्स है उसकी। पूरे कंट्री का कौन सोचेगा? पूरे कंट्री के लिए तो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, कोई काउंटेबल नहीं रहेगा। ओके, सो पूरे कंट्री के बारे में भी सोचना है तो एक मेजर पार्टी, दो मेजर पार्टी जरूरी है जो पूरे कंट्री के बेनिफिट और पूरे कंट्री की पॉलिसी बनाए, ना कि एक एरिया की, एक स्टेट की, एक रीजन की। गेटिंग माय सेइंग? सो पूरे कंट्री के अगर सोचना है, दिस नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पूरी पार्टी, उसके मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे तो ही पूरे कंट्री के पॉलिसी प्रोग्राम्स आगे चलेंगे, फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट होगी, बाकी फॉरेन कंट्रीज के साथ हम लोग डील कर पाएंगे। कंट्री का जो भी डीलिंग है, एक अलग अलग कैंडिडेट खड़े हो गए जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो कैंडिडेट नहीं वर्ल्ड के कंट्रीज का साथ डील कर सकते हैं, फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांगली नहीं फॉर्मुलेट कर सकते, वही पार्टी कर सकती है जिसके हाथ में पूरी कंट्री की बागडोर है। आई होप यू अंडरस्टूड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स, ये भी डिस्कशन हो रही है कि कितनी पार्टी बेनिफिट और कितनी होनी चाहिए। ओके, पार्टीज कुछ कंट्री ऐसे हैं वो अपने आप को कहते तो डेमोक्रेटिक है, बट ओनली वन पार्टी है। फॉर एग्जाम्पल चाइना, हमारा नेबरिंग कंट्री, वहां पे एक ही पार्टी स्ट्रांग है, कम्युनिस्ट पार्टी। कहने को तो वहां पे है कि पॉलिटिकल पार्टीज बनाओ, इलेक्शन
कंटेस्ट करो, बट फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं, किसी को भी राइट नहीं कोई इन रियलिटी कोई पार्टी फॉर्मुलेट करने का और इलेक्शन लड़ने का. सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस फॉर अदर पार्टी. ओनली कम्युनिस्ट पार्टी सिंगल पार्टी है, और सिंगल पार्टी का इलेक्शन ना हुआ ना हुआ एक बराबर है, क्योंकि एक ही पार्टी है, लोग उसी को वोट डालेंगे. सो दैट इज नॉट डेमोक्रेसी. वो तो डेमोक्रेसी ना हुई. जहां पे सिंगल पार्टी है वो तो डेमोक्रेसी हुई ना. तो हम लोग डिस्कस करें कि डेमोक्रेसी में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी जरूरी है. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द टू पार्टी सिस्टम. टू पार्टी सिस्टम, दो पार्टियां होती हैं नेशनल लेवल पे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल ऑफ इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम. ओके, सो यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड या ब्रिटेन एक ही थिंग है, जैसे भारत, हिंदुस्तान, इंडिया. ओके, सो ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में दो मेनली लेबर एंड कंजर्वेटिव पार्टी. वो हेल्दी कंपटीशन होता है. ओके, इतने ज्यादा कैंडिडेट पार्टीज होना भी मैसी हो जाता है, काफी कंफ्यूजिंग, और कई अपने बेनिफिट के लिए काम. टू पार्टी इज अ हेल्दी कॉन्सेप्ट और कंट्री के बेनिफिट के लिए काम करती हैं, और खर्चा भी कम होता है, लोग भी कंफ्यूज नहीं होते हैं. दो ही पार्टी हैं, अमेरिका में भी दो ही है मेनली पार्टी. सो कौन सी पार्टी का क्या पॉलिसी है, क्या प्रोग्राम है, कैसे फॉर्मुलेट कर रही है, कैसे कॉमन पीपल आर ऑल्सो नॉट कंफ्यूज्ड, दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट दैट. ओके, सो एक पार्टी को पता होता है मैंने जहां पे गलत नहीं किया तो दूसरी पार्टी जीत जाएगी, दोनों पार्टी. सो दैट इज द हेल्दी कॉन्सेप्ट, टू पार्टी. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मल्टी पार्टी सिस्टम. इंडिया में है ये. इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है ये, और इंडिया में इतनी ज्यादा पार्टीज हैं. अभी इलेक्शन कमीशन ने कम से कम 750 to 800 तक पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है. इतनी पार्टीज हैं, और बहुत सी पार्टी रीजनल और छोटे छोटे. ओके, आई कैन अंडरस्टैंड. जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी इतनी है, इंडिया बहुत बिग कंट्री है. ओके, लैंग्वेजेस, कल्चर, ट्रेडिशन, वी कैन से रिलीजन्स आल्सो देयर, बट दिस इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द कंट्री. इतनी ज्यादा पार्टी होना, और जो थोड़े बहुत कैंडिडेट जीतते हैं वो कई बार कोलिशन गवर्नमेंट, आपको पता है, बनी है 2, 4, 12 पार्टियों को लेकर एक, वो पर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है. बार बार फिर स्टेबल गवर्नमेंट अपने बेनिफिट के लिए ये ब्लैकमेल करते हैं गवर्नमेंट को, ऐसे नहीं वैसे हमारे फेवर में काम करो, पॉलिसी फॉर्मुलेट करो हमारी स्टेट के लिए, हमारे रीजन के लिए या हमारी पार्टी के लिए. और ब्लैकमेल करते करते कई बार गवर्नमेंट, आपको पता है क्या हुआ, नो कॉन्फिडेंस मोशन में रिजाइन करना पड़ा और दोबारा इलेक्शन. और इलेक्शन इज नॉट अ इजी टास्क. 4-5 हजार करोड़ रुपया लग जाता है. वो हमारे कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन को और डाउन करता है. सो मल्टी पार्टी सिस्टम इज नॉट अ हेल्दी thing. It is a messy and sometimes it create hurdles for the national development and country's development. Two-party system is healthy, but still for our India's geographical, you can say, custom tradition, so much diversity is there. So two party to nahi chalegi, 3-4 say, but here we have more than 700 or more, near about 800 political party. I hope you understood today's party. I will not discuss in long, as we Indian have habitual to discuss about political party. I said already when I started the topic, I told you we are very enthusiastically participate in the discussion of political party. So I will not discuss in detail. I am leaving or ending that topic here. I hope you understood the topic very well. Still you are getting any problem, send me your problem in comment section. But before leaving, I want to remind you, subscribe and share my channel to all. That's all for today, Beta ji.